name score, upload amount, asset make, asset category. This is something from kind of variable. Car category, own house type, house surrogate document type, trader hearing business, trader business proof, credit card number, credit card category. We can also create a data frame जो कि देखते हैं हम. The data frame will give you the name of the variable, the number of null values, and the percentage of null values. So percentage missing equals to dot sum divided by 100 divided by length of data frame. %92 missing values are here. Name score 67%. Car category 99%. What will you do with these two variables? If there are 99% null values, Then drop it. drop it. There is no sense in taking it. Let's get first column is feature name. Will be dot columns. Percentage missing. Also percentage missing. So हमने यहाँ पे निकाला. The number of missing values. Let's see the data frame. So application ID, 0% missing values, number of missing values 0. 92% missing values, number is of the count is 5,600. Name score 67% missing values. So for most of these variables, the best thing will be to drop it, right? Because smallest is the 53% null values. Again, you can sort it. Missing value data frame dot sort values. By the percentage missing. Percentage missing. Sending equals to false. सबसे highest missing values कहाँ पे? car category. So in this state you rep ID1, trader business group variable. These are the variables. So the number of variables सब जब ज़्यादा होता है तो आप देख सकते हो sort करके. Then if you're having
let's say 200 or 300 variables. Okay. 200 to 300 variables. In that case, ऐसे आप देखोगे नहीं ना हर एक को कि क्या क्या है क्या नहीं, उस टाइप क्या क्या कर सकते हो. Let's see how many variables are having more than 25% missing values. So what I can do, NP इसको reset index कर लेते हैं. Where, sorry, so this is np.where is one of the most powerful functions. इसको आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हो, इसको null values imputation के लिए यूज कर सकते हो, इसको outlier handle करने के लिए भी यूज कर सकते हो. बहुत यूज है इसका np.where का. missing values data frame में percentage missing, percentage missing, if it is greater than 50, let's say 50%. इसमें मुझे यहाँ पे नंबर दिया, इंडेक्स नंबर दिया है, रो नंबर दिया है मुझे. From this row number, I want to access the name of those variables. So what function I can use if I have the index? Dot index. I log I can use, right? Here I want to say array जाएगा यहाँ पे. This code will return an array. This is the array that it will return. और इसको index है ना, index दिया जाएगा. And for this I want feature names. I can say feature names dot list. So these are the features which are having missing values greater than 50%. Again, if I want to say greater than 25%, same रहेगा. If I want to say greater than 75%, तो यहाँ पे भी कर सकते हो. अगर ये डेटा फ्रेम आपको मिल जाए, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो. तो जैसे यहाँ पे मैंने जो कंडीशन डाली, राइट, परसेंटेज मिसिंग ग्रेटर देन 75. सिमिलरली SQL में भी होता है, आप अलग अलग कंडीशंस डाल सकते हो एक टेबल के ऊपर एंड गेट द रिक्वायर्ड डेटा. यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑफिस एड्रेस को जहाँ पे भी ग्रेटर देन 80 है उसके मुझे रिकॉर्ड्स दो. तो ये मैं कोड यहाँ पे कर सकता हूँ. ये SQL में कोड रहेगा और वहाँ पे pandas में रहेगा. इतना ही डिफरेंस है pandas. You can also use pandas to join different tables, right? So you can similarly use SQL to join different tables. Equals to your sort I want
want to sort by application status. तो न्यू डेटा फ्रेम वेरिएबल को मैंने असाइन कर लिया है, डेटा फ्रेम डॉट हेड, ठीक है। डॉट हेड किया तो क्या मिला मुझे, अभी मैंने सॉर्ट बाय एप्लीकेशन स्टेटस किया है तो ये क्या होगा, अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा, अप्रूव विल बी एट द टॉप एंड नाउ फॉर दिस डेटा फ्रेम एट द एंड डिक्लाइन, ऊपर वाले सारे अप्रूव हो गए, नीचे वाले सारे डिक्लाइन हो गए, उस पे हमने सॉर्ट कर लिया। So you can also visualize, you can see ms dot heat map. Heat map पूर्वा या प्रवृत्ति नहीं हुआ, C1 heat map हुआ है, right? C1 dot heat map new data frame, so these are the variables with 99%, I think this is with the 99% of values, जहाँ पे भी black है वहाँ पे data है, जहाँ पे भी white color में है वहाँ पे data नहीं है। So for this record this variable, इस variable में data नहीं है, approved amount और asset category, ठीक है। तो हमने ये न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट किया था, तो न्यू डेटा फ्रेम में हमने क्या किया था, सॉर्ट किया था ना। So all the top values are approved और and the down values are declined, तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ये जो सॉर्ट हुआ है नीचे सारे डिक्लाइन है, ऊपर सारे अप्रूव्ड हैं। तो यहाँ पे मुझे एक बात पता चल रही है कि यहाँ पे this variable which is this approved amount and asset category, for these two variables ऊपर में डेटा एटलीस्ट थोड़ा बहुत मिसिंग है, बट डेटा यहाँ पे है, लेकिन नीचे कुछ भी डेटा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, फॉर ऑल द डिक्लाइन एप्लीकेशन द अप्रूव्ड अमाउंट इज नॉट नोन। यहाँ पे भी देख सकते हैं हमने टेल किया था डिक्लाइन, आई वांट टू सी द अप्रूव्ड अमाउंट फॉर दिस, अप्रूव्ड अमाउंट इज नॉट। तो अगर आपको लोन दिया ही नहीं है तो अप्रूव हुआ भी नहीं होगा ना, एग्जांपल लेके आपका लोन दिया ही नहीं है तो कितना अमाउंट अप्रूव हुआ है वो होगा ही नहीं, वही है यहाँ पे कि अगर डिक्लाइन है लोन तो अप्रूव्ड अमाउंट इज नल। यू कैन यूज दिस हीट मैप फॉर वेरियस रीजंस, हीट मैप का यूज कैसे भी कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर कोरिलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे तो पता चल रहा है, अगर इसी को हम लोग देखना चाहते हैं, खुद से ही कुछ देखना चाहते हैं कि कुछ एनालिसिस करके कि आई वांट टू सी हाउ मेनी नल वैल्यूज आर देयर फॉर डिक्लाइन, हाउ मेनी मतलब मुझे नंबर चाहिए कुछ, तो यहाँ पे तो विजुअलाइज हो गया, बट आई वांट द नंबर, कितने डिक्लाइन के लिए कितना प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। सो हियर लेट्स क्रिएट अ न्यू वेरिएबल approve amount plan equals to where we have dot approved amount in capital, approved amount is null, जहाँ पे भी नल है
null है इसके लिए ये कंडीशन डालनी पड़ेगी if the upload amount is not equals to true then say null otherwise not null. एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कुछ ऐसा होगा, this is the approved amount and now this is approved amount flag. फ्लैग में क्या होगा, अगर approved amount यहाँ पे कुछ डेटा है तो यहाँ पे बोलेगा not null, ठीक है। और अगर डेटा मिसिंग है, this is the missing data, if the data is missing then it will say null. Okay. बस एक फ्लैग क्रिएट किया हमने, फ्लैग is a binary variable, it will say yes or no, a flag will say yes, it is to be sold or not to be sold, like that a flag is there. मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कि null या फिर not null, so upload amount flag, let's run it, and it will be there in the variable, so in the column, right. Upload amount flag is now added to the data frame. If I say df.group by, group by first is the application status, then upload amount flag, aggregate, amount status, of that group by, application status को मैंने काउंट किया, तो यहाँ पे क्या है, application status is upload, then application status अपलोड होता है, वहाँ पे भी फ्लैग है, राइट। वहाँ पे नॉट नल कितना है 2600 और नल कितना है 796। यहाँ पे rather than application status I can say application ID, तो जस्ट काउंट के लिए मुझे काउंट क्या करना है, नंबर सेम ही आएंगे यहाँ पे। तो अप्रूव कितने एप्लीकेशन से, इन दोनों का एडिशन करोगे तो अप्रूव मिल जाएंगे। फिर अप्रूव को कैसे डिवाइड किया गया है, इन केस ऑफ अप्रूव अमाउंट फ्लैग में नॉट नल में 2600 है और नल में 796 है। एंड फॉर डिक्लाइन में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं 2718, दोनों का एडिशन, उसमें नॉट नल में बस एक है और नल में 2717, जो कि मुझे यहाँ पे पता चलता है कि डिक्लाइन में सारे वैल्यूज नल ही है, तो यहाँ पे वही बता रहा है।
यहाँ तक कुछ डाउट है? Any doubt up till now? Decline में amount here तो नहीं है, तो उसमें not necessary. Sorry, you are not audible. Yes, Mitra. Decline में amount here तो नहीं है, तो not necessary. Decline मध्ये null मध्ये सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू राईट. Not null. Amount decline म्हटल्यानंतर amount decline मिळायला पाहिजे ना मग. हा नाही अमाऊंट राईट राईट करेक्ट तेच तेच की एक बिझनेस वेने पण विचार केला तर एक कळतं की आपल्याला डिक्लाइन आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये नलच असायला पाहिजे राईट. तुमचं जर लोन डिक्लाइन झालं तर तुमची अप्रूव्ड अमाऊंट काहीच नाही ते इथं दिसतं आपल्याला. तुमचं डिक्लाइन झालंय तर सगळ्यात तुमच्या व्हॅल्यूज नल आहेत अप्रूव्ड अमाऊंट फ्लॅग मध्ये. ग्रुप बाय फंक्शन आप कहाँ पे भी यूज कर सकते हैं. ग्रुप बाय मल्टीप्लिकेट. I want to see the credit card category. Credit card category. क्रेडिट कार्ड्स में कितने कैटेगरीज हैं? गोल्ड प्लैटिनम. गोल्ड प्लैटिनम में यहाँ पे फिर से इसलिए आया होगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं. तो दोनों को कैसे ट्रीट करना पड़ेगा? व्हाट इज द वे टू ट्रीट दिस? क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम है. What is the way to treat this? Hello. इसको ट्रीट करने का तरीका क्या होगा? दोनों एट द एंड सेम ही है राइट. गोल्ड प्लैटिनम कैटेगरी, गोल्ड प्लैटिनम कैटेगरी. तो दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. Can be credit card category equals to gold platinum category. तो हम mutually replace कर सकते हैं. So I will use the replace function. Replace function we can use, right? So I want to replace this with what? With this. So now everything will be gold slash platinum without space category. I have to assign this. Okay, it should be dictionary. अभी इसको रन करके देखते हैं. Okay. This is again what is called as data cleaning. आप क्लीन करना है डेटा. तो ईडीए करने के बाद ही आपको पता चलेगा. अगर मैंने यूनिक वैल्यूज देख ली होती क्रेडिट कार्ड की, if I went through the unique values of credit card category, then I could know that दो कैटेगरी का नेम तो सेम है बस स्पेस का फर्क है राइट. तो उस टाइम पे मैंने दोनों को एक ही कर लिया होता. देन आई मूव्ड. उसके बाद मैं यहाँ पे आता था. ठीक है. तो इसलिए ईडीए जरूरी होता है. आपको ईडीए उसलिए करना ही पड़ता है कि ईडीए पे ही आपको पता चलेगा कि आपका डेटा कैसा है. विदाउट ईडीए यू कैन नॉट डू एनीथिंग. Now if I want to see the unique values, we can use a for loop for them in here
center, colon, top unit, पहले इसका कॉलम में भी प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। सिंपल वैसे ही करते हैं। प्रिंट number of unique values in column, the column it's just line article is there. Number of unique values in application ID, ये तो एप्लीकेशन आईडी हर एक यूनिक ही होता है, इसके डॉट 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 करके दिया इसमें डीएसए आईडी और जेनेसिस आईडी। पेज के अंदर कितना यूनिक वैल्यूज है, जेंडर मेल फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल मैरिड, QID, ठीक है। So on these also you can do a lot of VDA। प्राइमरी एसेट कैटेगरी में क्या क्या है, तो ये रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, पैनल, FHD, पैनल, UHP कर्व, तो मैं यहाँ वेरिएबल ये फॉर्म लेते हैं, सारे नल वैल्यूज को ड्रॉप करके लेट्स मूव इट टू दी सम एनालिसिस, यूनिवेरिएट हाइब्रिड एनालिसिस करते हैं। तो ड्रॉप नल वैल्यूज, now there is a simple count plot, let's see one count plot
I want to count, I want to know the balance of the data, that is how my target variable is balanced. So my target variable is application status. एप्लीकेशन में कुछ नहीं है, कि हमने ड्रॉप एने करके उसके किया है ना, राइट। हम इससे रिपोर्ट करते हैं। First, let us find out what are the columns with the null values. Percentage missing में हमने देखा था किसको रिमूव करना है. These are my columns with these are my columns with null values. More than 50% I can say. Yes. इसको मैं असाइन करता हूँ. Column. T1 equals to T crop column with null. This will be 1. Okay. So this is count plot. There are various plots present in Seaborn. और एक documentation भी आप देख सकते हो, Seaborn की website पे available है. So it just give me the number, how many are decline and how many are update. You can get the same number using the value counts. If I want to see something more, so I will say पहले तो data frame देता है, data कौन सा है, D1 data frame में से X is just the variable name.
Okay, now how many variables that we are looking at right now? Two. Two variables. First is application status and the education. This will be bivariate analysis. अब दो वेरिएबल्स को प्लॉट करके देख रहे हो. अभी यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो और इसका नंबर भी निकाल सकते हो. नंबर जैसे ऊपर मैंने ग्रुप बाय किया था, ग्रुप बाय एग्रीगेट जब मैंने किया था, सो दैट मींस कि मैंने कुछ नंबर्स निकाले थे वहाँ पे, and that numbers I can use to create anything. Like I can create a pie chart, I can create जो भी मैं create करना चाहता हूँ. अगर numbers मेरे पास है तो मैं create तो कुछ भी कर सकता हूँ. और अगर डायरेक्टली यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो. इसको एक्सेल में भी लेके आप कुछ प्लॉट कर सकते हो. अगर आपके पास नंबर्स है तो आप प्लॉट कैसे भी कर सकते हो, राइट. इसको पीपीटी में प्लॉट करना है तो पीपीटी में प्लॉट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे बस आपको नंबर्स डालना है. ये डेटा किया हमने. Two variables are there, two columns are there. इसमें numbers क्या है? ये चार्ट क्रिएट करने के लिए क्या आपको बस इंसर्ट करना है. क्रिएट न्यू स्लाइड here. ऐसे इंसर्ट चार्ट. किस टाइप का चार्ट मुझे चाहिए? अलग अलग टाइप के चार्ट से. जब मैं ये बोलता हूँ यहाँ पे मुझे डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा पहले तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना अभी एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड डिक्लेयर. बाकी के दो को आप उड़ा सकते हो फिर डिलीट. तो सीरीज में क्या रहेगा? एजुकेशन लेवल. अभी क्या है अपना यहाँ अपना हमारे यहाँ ग्रेजुएट, अदर्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, डॉक्टरेट. यही पे आप ऐड भी कर सकते हो. आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो. अपने यहाँ पे नंबर डाल दो, ऑटोमेटिकली ऐड भी हो जाएगा. ठीक है. So this way, if you have the numbers, you can create the same chart in Excel or PowerPoint, and you can use any of that to present to your client. अगर जिसको भी दिखाना चाहते हो आप ईडीए कवर तो दिखा सकते हो. आपके टीममेट को दिखाना चाहते हो, लीड को दिखाना चाहते हो, उस वे में यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके दिखाना will not be a good thing. इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो आप. एक्सपोर्ट करने के बाद एक जेपीजी में फाइल आएगा आपको, उसको भी आप कर सकते हो. बट गुड वे विल बी इन एक्सेल और पावरपॉइंट. Again, I can do the same bivariate analysis with another variable, let's say children. So almost same ही है. अराउंड 500 के आसपास ही एप्लीकेशंस फीमेल के अप्रूव भी हुए. सॉरी, फीमेल डिक्लाइन भी हुए हैं, अप्रूव भी हुए, राइट. सेम ही है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं अप्रूव और डिक्लाइन में. Then you can do the same with parent status. तो आपको ऐसी ही बातें आपके इंटरव्यू में बतानी है. मतलब आज अगर आपका प्रोजेक्ट है तो मे भी उसके लिए भी प्रोजेक्ट इंटरव्यू है. कुछ ऐसा है मॉक में क्या है आज? यस सर. प्रोजेक्ट के बारे में. ठीक है, तो उनको भी ऐसा कुछ इंसाइट बता दो. इंसाइट अभी अभी आपके पास नहीं हो, आप खुद से बना लो आपके दिमाग में, आपको बता दो. स्टोरी होनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रियल वर्ल्ड में भी होना चाहिए. आसपास लॉजिकली करेक्ट हो, दैट इज करेक्ट. तो ऐसी चीजें भी वो चाहते हैं. व्हाट इज द ईडी. आपने ईडीएम में क्या किया?
देन बॉक्स प्लॉट भी कर सकते हो, अलग अलग प्लॉट से आप, ठीक है। कुछ प्लॉट से वो हम लोग बाद में भी लेंगे। सी बॉन्ड का देखते हैं हम लोग, सी बॉन्ड, what are the different charts available? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बार प्लॉट, पॉइंट प्लॉट, बॉक्सन प्लॉट, वाइलिंग प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप जो हमने देखा, पेयर प्लॉट, जॉइंट प्लॉट, मल्टीपल प्लॉट्स आर देयर। उसके कोड्स भी डायरेक्टली अवेलेबल है यहाँ पे। बार प्लॉट अगर मैं क्लिक करता हूँ, बार प्लॉट कैसे होता है क्या नहीं, इसके कोड्स भी डायरेक्टली यहाँ पे लिए हुए हैं। हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। एक डेटा सेट भी यहाँ दिया होगा, तो डेटा सेट आप डायरेक्टली कोड करके डाउनलोड कर सकते हो। वेरियस मेथड्स आर देयर, किसी का यूज कहीं पे हो सकता है। और एज अ डेटा साइंटिस्ट इट इज नॉट मस्ट फॉर यू टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस, बिकॉज यू आर नॉट अ पावर बीआई स्पेशलिस्ट और डेटा विजुअलाइजेशन स्पेशलिस्ट, बट स्टिल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलर आपके सामने आता रहता है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए। बॉक्स प्लॉट तो आपको सबको पता होगा, राइट? बॉक्स प्लॉट मशीन लर्निंग तो हुआ है अभी, बॉक्स प्लॉट आपको पता होगा। Yes, sir. दिस इज रिग्रेशन लाइन है ना, हम लोग जो देखा था हमने, वी ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट फिटिंग लाइन। ये अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स है तो आपकी लाइन भी कैसे ड्रॉ हो रही है आप देख सकते हो। आप दिस इज अ कर्व, ये कौन सा कर्व है? sigmoid curve. सिग्मोइड कर्व। If you are interested you can go through this, although हम लोग कोड तो देख नहीं पा रहे, थोड़ा बहुत कोडिंग देखेंगे, नॉट एवरीथिंग, सारे सब कुछ कवर तो नहीं हो पाए, अदरवाइज बाकी की चीजें मिस हो जाएगी जो हम लोग फीचर इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं। So these are the data types where the column is object data type. सिविल स्कोर इसमें आ गया है, दैट इज नॉट करेक्ट। सिविल स्कोर इसमें कैसे आ गया है? डिफरेंट टाइप सिविल स्कोर और आई थिंक ड्यू टू दिस, इसमें क्या हुआ है, डैश है ना, सो डैश की वजह से इसको टेक्स्ट में या फिर स्ट्रिंग में लिया गया है। So we have to remove this dash, we have to replace this value with something else. Replace we want to replace this with let's say -1। ठीक है, पहले तो इसका मीनिंग क्या है, 0 to 1 है, सिविल स्कोर 0 to 1 का भी कुछ तो मीनिंग रहेगा।
score 0 even means either the borrower credit history is available for less than 6 months or no information is available. ठीक है? When there is no information available, CIBIL score is even as 0 to 1 ऐसा वो बोल रहे हैं. स्टिल क्रेडिट अगर क्रेडिट स्कोर होता है यहाँ पे जैसे कि सिविल स्कोर इंडिया में है तो बाहर की कंट्री में कुछ अलग रहेगा. क्रेडिट स्कोर ही होगा कुछ ना कुछ टाइप का. तो वहाँ पे सिस्टम कुछ अलग भी फॉलो की जा सकती है. तो वहाँ पे कैसे क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होता है थोड़ा बहुत देख सकते हो तो आप वो भी एक्सप्लोर करो. ठीक है. टेक्निकल साइड से सब कुछ होगा. टेक्निकल साइड से सब कुछ सिखाया भी जाएगा. लेकिन आप जो प्रोजेक्ट करते हो प्रोजेक्ट को आपको खुद को ही करना है क्योंकि कोई इंसान आपको सारे डोमेन के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता. वो पॉसिबल नहीं. आपके खुद के इंटरेस्ट से आपको करना है. अगर कोई है जो कि जिसको कोर में प्रोजेक्ट करना है कुछ मैकेनिकल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट करना है किसी को इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ प्रोजेक्ट करना है कुछ वहाँ पे प्रोडिक्शंस करनी है उनको खुद को इंटरेस्ट है तो वहाँ पे करो. वहाँ का बिजनेस नॉलेज भी आपको रहेगा. वहाँ पे कौन सी टर्म्स यूज की जाती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ऑलरेडी आपको पता होगा. तो उसको भी आप यूज कर सकते हो. या फिर अगर आप बैंकिंग फाइनेंस टेलीकॉम रिटेल लॉजिस्टिक्स इसका कुछ लगाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत आप जिस जिस भी बारे में प्रोजेक्ट कर रहे हो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से थोड़ा सा स्टडी कर लो. मतलब ब्लॉग्स पढ़ लो. इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है. ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी. बस थोड़ा टाइम देना है. 1-2 घंटे दोगे आप आराम से सब कुछ लिख सकते हो. एक माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट में सारे नोट्स निकाल लो. then you can revise it anytime. Now this credit score, I can see the credit score now. Let's plot the box plot. डेटा टाइप अभी भी क्या है इसका स्प्रिंग है. एल्स टाइप font is integer. Decline and then approved. So I can see for approved, the range is between this 700, okay, 700 to 850 or 900. I can say for approved, the CIBIL score range is between this, and for decline, the range is between 0 to 650. So which again says the same thing. CIBIL score is basically used to find out कि आपको लोन दिया जाएगा या फिर नहीं जाएगा, राइट. सो आई थिंक अराउंड 700 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर होता है तो आपको लोन दिया जा रहा है. स्टिल यहाँ पे एक लाइन है. मतलब कुछ कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हैं जिसका सिविल स्कोर यहाँ पे भी है. स्टिल दे आर नॉट गेटिंग देयर लोन अपफ्रंट. एंड कुछ कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे भी है अप्रूव में जिनका सिविल स्कोर अराउंड 0 है. आई थिंक दिस इज फॉर दैट -1 जो हमने देखा. ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है. स्टिल दे आर गेटिंग देयर लोन अप्रूव. The distribution plot is there.
200 to 400 के बीच में ज़्यादा वैल्यूज नहीं है, देन 400 से वैल्यूज स्टार्ट होती है। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यूज है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा काउंट है। Most of the data points are between this. There are also some data points between this 0 to I think 100. Then some of the data points are here as well. These will be the outliers. यहाँ पे भी जो रहेंगे outliers रहेंगे। फिर वो बॉक्स प्लॉट में डाउट लर दिख रहा था ना अप्रूव में, सिविल स्कोर बहुत लो था फिर भी अप्रूव नहीं चला था। यहाँ पे अप्रूव्ड में आउटलायर दिख रहे हैं, सिविल स्कोर कम होते हुए भी। हाँ उसको नहीं करना पड़ेगा क्या? हाँ है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। एज अ डेटा साइंटिस्ट, व्हाट इज योर थिंकिंग, व्हाट इज योर अप्रोच टू डू इट, राइट? व्हाट विल आई डू? फर्स्ट आई विल फाइंड आउट व्हाट इज द काउंट ऑफ दीस आउटलायर्स, इसका काउंट कितना है। इफ दिस इज मेजर, इसका परसेंटेज ज्यादा रहता है, देन आई विल नीड टू कंसीडर दिस। अदरवाइज if they are little in number, lower in number, what will I do is I can drop it, because but I don't think छोटा नंबर है, नंबर इज वेरी बिग, राइट? यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे जो है डेटा पॉइंट्स, ये वाले डेटा पॉइंट्स, तो द नंबर इज गुड इनफ, अच्छा खासा नंबर है, तो उनको हम ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आइदर व्हाट आई विल डू, इनको मैं यहाँ पे लाके रख सकता हूँ, यहाँ पे इस लाइन पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्टेड है मोस्टली, ठीक है, नहीं यहाँ पे एक्सेप्टेड, इस रीजन से एक्सेप्टेड स्टार्ट होता है, यहाँ से अराउंड 700 के ऊपर मैं इसको यहाँ पे लाके सकता हूँ, लाके रख सकता हूँ। अदरवाइज मीडियन, राइट? इसका मीडियन क्या है? सिविल स्कोर का मीडियन around 734. I can include it with median. Mean is around 526. 526 will be something here. 734 is something here. मीडियन जो बोल रहा है ना, वो वही मीडियन का नंबर है जहाँ पे सबसे ज्यादा काउंट्स है, ठीक है। So what will be my strategy will always depend on what is my approach, what is my thinking, what I think I should do if I go with this median or mean, मेरे ऊपर है। ये हर एक डेटा साइंटिस्ट को होता है। At the end सबके लिए एक we want to have the highest accuracy for the model। या फिर आप एक कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी स्कोर है, इसमें से डिक्लाइन कितने, एक्सेप्टेड कितने, वो निकालो। देन जहाँ पे एक्सेप्टेड होता है उन्हीं का मीडियन निकालो, जितना एक्सेप्टेड लोग हैं उनका मीडियन निकालो। देन असाइन दिस एक्सेप्टेड टू दैट मीडियन। देन डिक्लाइन लोगों का मीडियन निकालो, डिक्लाइन लोगों को मीडियन से, यहाँ पे जो डिक्लाइन है उनके मीडियन से उनको इम्प्रूव कर दो, ठीक है। दिस इज आल्सो वन स्ट्रेटजी। Different strategies are there. Totally depends upon your knowledge and your experience. -1 CIBIL score, it means a user has not run their CIBIL score anywhere, so he is a fresh user, so they can get approved. Right, correct. अगर कुछ डेटा ही नहीं है ना आपका, अगर आप पहले ही, मतलब आपका पहला जॉब है, आपका कुछ क्रेडिट स्कोर अभी तक बना नहीं, आपने कभी क्रेडिट कार्ड भी नहीं लिया, आपका बैंक अकाउंट भी नहीं है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ अवेलेबल ही नहीं कहीं तो, and you started making 50,000 per month, and the bank knows that you have a salary account with 50,000 per month coming every month, तो उस टाइम पे वो लोग दे ही देंगे ना आपको, राइट? Yes, right. सर अगेंस्ट द कोलैटरल भी हो सकता है ना? हाँ, कुछ भी हो सकता है, बट करेंटली दिस इज अबाउट कंज्यूमर मतलब कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तो हमको ईडी करना है।
if this is against collateral or not, इसलिए हमको ईडीए करके देखते हैं. अगर ये लोन टाइप कुछ डिफरेंट टाइप का होता था, then there was a collateral, then I will be able to find out कि यहाँ पे जो accepted लोग हैं उन्होंने कुछ collateral दिया है क्या. अगर उन्होंने कुछ श्योरिटी दे के लोन लिया है तो उनके लिए कुछ अलग वे मुझे देखना था, और जिन्होंने नहीं दिया तो उनके लिए कुछ अलग वे मुझे देखना था. That will be the good way, right? Right, sir. Okay. Application status on y-axis, and x-axis we are not able to use. So two variables must be integer or continuous variables. Cannot do that with categorical versus continuous. Now application score is on my y-axis. On the x-axis I have CIBIL score. So I'm able to plot it using the two. अगर इस data point का मुझे coordinate मिल जाए x and y, so what will be the x coordinate of this data point? 400. And वो क्या है, CIBIL score है या फिर application score है? CIBIL. CIBIL score. Y coordinate will be the application score. I have used two different variables. Here I can use one more variable. Weird. I can use a categorical variable now. अभी क्या किया मैंने, सेविंग प्लॉट है सेम है, बस कलर का फॉर्मेट चेंज हुआ ड्यू टू दिस एप्लीकेशन स्टेटस. नाउ एप्लीकेशन स्टेटस विद अप्रूव्ड is in orange color. Okay. And with decline it is with different. So how many variables we are currently using here? Three. Three variables, right? More than two variables, it is multivariate analysis. सर ये एप्लीकेशन स्कोर मतलब क्या चीज होगा? कल हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन स्कोर. एप्लीकेशन स्कोर जब आप एप्लीकेशन करते हो किसी, आपका एप्लीकेशन है, आपने इस बैंक में एप्लीकेशन किया हो, जैसे लास्ट ईयर कुछ एप्लीकेशन किया था आपने, आपका उस टाइम पे नेट टेक होम सैलरी डिफरेंट था, सब कुछ डिफरेंट था, उस टाइम पे आपका डिक्लाइन हो गया. ठीक है, उस टाइम पे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा नहीं था. देन अगर आपका सिविल स्कोर भी अच्छा नहीं है तो अल्टीमेटली एप्लीकेशन स्कोर भी थोड़ा सा कम ही होगा. बट अभी मतलब एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, दिस ईयर योर सिविल स्कोर इज गुड, योर नेट टेक होम सैलरी इज आल्सो गुड, अदर वेरिएबल्स आर आल्सो गुड, देन अल्टीमेटली एप्लीकेशन स्कोर आपका अच्छा आ गया इस बार, राइट? का जो एप्लीकेशन आपने दिया इस साल वो अच्छा था. देन that again plays a role in getting your application as accepted, right? So application score वो एक formula से calculate होगा, which is again decided by